and welcome to our IC Mumbai online service. नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आईसी मुंबई के ऑनलाइन सभा में। And we are very excited that you all have joined us online today. इस बात से हम बहुत उत्साहित है कि आज आप लोग सब हमसे ऑनलाइन में जुड़ सके। And Priya, I am very excited to praise God now. और जेनी, मैं बहुत उत्साहित हूँ प्रभु की स्तुति करने के लिए। And I'm sure even you all are also excited and you have been waiting to praise God. अब मुझे यकीन है कि आप सब भी उत्साहित और रुके हुए हैं कि कैसे आप प्रभु की स्तुति करेंगे। So wherever you are, make sure that you're standing and you're absolutely ready to jump and praise God. जहाँ कहीं भी हो आप लोग पैर रखना कि आप लोग खड़े हो और कूद कर प्रभु की स्तुति करें। And we have Abhinesh today with us who will be leading praise and worship. और हमारे साथ आज अभिनेश है जो स्तुति और आराधना में हमें चलाए। Come on everyone, let's just jump. क्यों ना सब लोग कूद कर स्तुति करें। Verse 3. I don't need another reason. I just think about my Jesus. I don't need to hype myself up. I just think about your love, your love, your love. I just think about your love, your love, your love. I just think about your love. Oh man, man, I jump कोई कारण आवाज़ में उठाकर चिल्ला कर गाऊं महान है तू ओ चिल्ला कर गाऊं महान है तू ओ चिल्ला कर गाऊं महान है तू yeah, come on, praise him. Let's keep स्तुति करें. I'm not waiting for a feeling. I just praise 'cause I believe it. This is more than just emotion. It's the power of your love, your love, your love. It's the power of your love, your love, your love. It's the power of your love. Oh man, man, I चाहूँ कोई कारण आवाज़ में उठाकर, come on, चिल्ला कर गाऊं महान है तू, ओ चिल्ला कर गाऊं महान है तू, ओ come on, चिल्ला कर गाऊं महान है तू, तू ही सब कुछ मेरा, तू ही मुझको काफी, स्तुति तुझको मैं दूं, स्तुति स्तुति मैं दूं। और मैं न चाहूँ कोई कारण आवाज़ में उठाकर चिल्ला कर गाऊं महान है तू। Come on. Oh, महान है तू। Oh, 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 oh. तू है सब कुछ मेरा, तू ही मुझको काफी, स्तुति तुझको मैं दूं, स्तुति स्तुति मैं दूं। That was an awesome praise. और ये बहुत अच्छा स्तुति था। Thank you so much Abhinesh. धन्यवाद अभिनेश। Great, moving ahead. और बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हुए It's time to welcome our special guest. ये समय है हमारे खास मेहमानों का स्वागत करने का। Now who is our special guest? Priya. और जेनी, हमारे खास मेहमान कौन है?
I'm sure if you are with us for the past 4 years, anyone who visits or who sees us for the first time is our special guest. और मुझे यकीन है जो भी लोग हमारे साथ पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं, आपको पता है जो भी लोग हमें पहली बार देखते हैं या फिर पहली बार हमारे साथ जुड़ते हैं, वो लोग हमारे खास मेहमान हैं। So, if you're watching this video for the first time, let me tell you, you are our special guest. अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप हमारे खास मेहमान हो। You might be from any place across India, और आप भारत के कोई भी हिस्से से हो सकते हो, but we would love to get in touch with you. लेकिन हमें बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ जुड़कर। So, in the comment section, you will see a link. I would request you all to please click on that link. और कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक दिखेगा और मैं ये दरख्वास्त करूंगी कि आप उस लिंक पर क्लिक करें And fill in your details so that we can get in touch with you throughout the week. और आपकी जानकारियों को उसमें भर दें ताकि हम इस हफ्ते के दौरान आपसे संपर्क कर सकें। Once again, we would like to thank you for joining us. एक और बार हम धन्यवाद करना चाहेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। Great. Let's see what's happening this week. और बहुत अच्छा देखेंगे कि इस हफ्ते क्या हो रहा है। So this week we will be meeting for worship nights. इस हफ्ते हम लोग आराधना के शाम के लिए मिलेंगे। So during the time of lockdown, और इस लॉकडाउन के समय में we have started something called as worship nights, हमने वर्शिप नाइट बोल के कुछ शुरू किया है, which happens on Tuesdays at 8 p.m. जो मंगलवार को रात को 8 बजे होता है। And this is live on Facebook. और ये फेसबुक पर लाइव होता है। Now, when does this happen? लेकिन ये कभी होता है? This happens once a fortnight. ये 2 हफ्ते में एक बार होता है। Once a fortnight on Tuesday at 8 p.m. 2 हफ्ते में एक बार मंगलवार रात के 8 बजे। On Facebook, it's called IC Mumbai Worship Nights. और फेसबुक पर इसका नाम है IC मुंबई वर्शिप नाइट। All that you have to do is you will have to send in a request and we would be happy to let you guys in. आपको बस इतना ही करना है, हमें एक रिक्वेस्ट भेजना है और हम आपको उसमें जोड़ेंगे। And we absolutely love praising and worshiping God, during that time. और हमें बहुत अच्छा लगता है प्रभु की स्तुति और आराधना करके। So do not forget to join in this week on Tuesday. तो भूलना मत इस हफ्ते जो है मंगलवार रात के 8 बजे हमारे साथ जुड़े। And like every Sunday, we have our live online church happening in the evening at 6 p.m. और हर रविवार की तरह शाम के 6 बजे ऑनलाइन कलीसिया होगा। Great. So these are the announcements for this week. और बहुत अच्छा, यही सूचना है इस हफ्ते के लिए। And we will move into the offering now. और हम लोग जो है भेंट और दशमांश की ओर बढ़ेंगे। As we come around the time of tithes and offering, और जैसे ही समय है भेंट और दशमांश का, you will see details given on the screen. Why don't you take a note of it? और आप स्क्रीन पर जानकारियों को देखोगे, क्यों ना आप उसे नोट डाउन कर ले। So I'm going to read from Psalms chapter 22 verse 3. और मैं भजन संहिता से पढ़ने वाली हूँ 22वां अध्याय 3रा वचन। The verse says, और वचन ये कहता है, Yet you are holy, enthroned on the praises of Israel. भले ही आप पाक हो और उसकी स्तुति के सिंहासन पर विराजमान हो। Yet you are holy, enthroned on the praises of Israel. हाँ, आप पाक हो और आप उसके इज़राइल की स्तुति पर जो है विराजमान हो। Church, I want to tell, we are the Israel. Those who believe in Jesus are the people of Israel. We are Israel. कलीसिया, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हम जो है वो इज़राइल है, जो उस पर विश्वास करते हैं, उन्हीं लोगों को इज़राइल कहा जाता है। We are His nation. और हम उसकी दुनिया है। So when we praise Him, He is enthroned on our praise. तो ऐसा होता है कि जब हम स्तुति करते हैं, हमारे स्तुतियों पे वो विराजमान होता है। I want to talk about praise here. और मैं यहाँ पर स्तुति के बारे में बात करना चाहूँगी। Praise means to express respect or gratitude towards someone. और स्तुति का मतलब ये होता है कि हम किसी को आदर दिखाते हैं या फिर किसी पर आदर जताते हैं किसी की तरफ। And you know, God alone is worthy of praise. और आपको अच्छे से पता है कि सिर्फ प्रभु ही है वो स्तुति के योग्य। So what has this got to do with offering, Jenny? तो
ये ऑफरिंग से क्या लेना देना है, भेंट और दशमांश से क्या लेना देना So है? church, when you give in the kingdom of God, तो कलीसिया, जब आप प्रभु के राज्य में बोते हो, you're not only sowing and receiving, आप सिर्फ बोते ही और काटते नहीं रहते हो, but you're also showing respect and gratitude to God for the provision He has given you in your life. लेकिन साथ ही साथ आप ये करते हो कि प्रभु को जो है आदर दिखाते हो वो सारी चीजों के लिए जो आपके जीवन में वो करता है। So remember, when you give, तो याद रखना कलीसिया, जब आप देते हो, you're not only sowing, but you're also praising God by this action. आप सिर्फ उसके राज्य में बोते ही नहीं, लेकिन आप उस कार्य के द्वारा उसकी स्तुति भी करते हो। And church, wherever your praises are, God is enthroned over it. और कलीसिया, जहाँ पर भी आपकी स्तुति है वहाँ पर प्रभु विराजमान होता है। And guess what? If you praise Him by giving your finance, और पता है क्या, अगर जब आप प्रभु को अपने पैसों के द्वारा उसका आदर करते हो या फिर उसकी स्तुति करते हो, He is enthroned over it. वो जो है वहाँ पर विराजमान होता है। And wherever God is enthroned, He rules. और जहाँ कहीं पर भी प्रभु विराजमान होता है वो जो है वहाँ पर रूल करता है, राज्य करता है। And you know how He rules. और आपको पता है कि राज्य कैसे करता है वो। And imagine how great it would be if He manages your money. The King of Kings, the Lord of Lords manages your money. और सोचिए इस बारे में कैसा लगेगा, वो जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, वो आपके पैसों को जो है संभालेगा। You can't even imagine how fruitful your provision would be. आप शायद सोच भी नहीं सकते हो कि आप कितने फलदायी बनोगे। And all this starts with a simple action of giving into kingdom of God. और ये सब जो है सिर्फ एक छोटे कार्य के साथ में शुरुआत होता है, वो ये कि प्रभु के राज्य में बोना। I would encourage you today. और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगी आज की Give the शाम। best of your income and praise God. और आप आपके आमदनी के सबसे उम्दा हिस्सा जो है उसके राज्य में बोना और उसकी स्तुति करना। And I would challenge you, और मैं आपको चुनौती देना चाहूंगी, the moment you feel there is a fear in your heart that, oh God, should I give this or not? और यदि अगर आपके दिल में जो है एक भय आ जाता है कि क्या मुझे ये रकम देना है या नहीं, You just be sure that you are giving and praising. आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप दे रहे हो और प्रभु की स्तुति कर रहे हो। And when you praise Him, He is enthroned over it. और जब आप उसकी स्तुति करते हो तो वो वहाँ पर विराजमान होता And है। no doubt He's going to bless you in abundance. और इसमें कोई भी शक नहीं है कि आपको जो है बहुतायत में आशीष मिलेगी। Let's all close our eyes and pray for all the offering. तो क्यों ना हम आंखों को बंद करें और इस भेंट के लिए प्रार्थना करें। Dear God, I just thank you for this time. प्यारे प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए। And you help us with a heart of giving. और आप हमें मदद करना ताकि हम उस तहे दिल से जो है आपके राज्य में बो पाए। And God, help us to give the best that we have got. और प्रभु मदद करना हमारी, ताकि हम जो है सबसे उम्दा हिस्सा जो है आपके राज्य में बोए, So that we can give you the best praise. ताकि हम आपको सबसे उम्दा स्तुति दें। And God, you be enthroned over our life. और प्रभु आप हमारे जीवन पर विराजमान होना। In Jesus' name I pray. और यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Wherever you are, why don't you stand up on your feet and we'll go into a good time of worship. और आप जहाँ कहीं पर भी हो, क्यों ना हम खड़े हो जाए ताकि हम एक अच्छे समय में जाएंगे आराधना के। Oh, Jesus. Come on, church, let's worship God tonight. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Yeah, my God will never fail. तुझ में विजय मैं पाऊंगा, तुझ में विजय मैं पाऊंगा। ये जंग है तेरा यीशुआ, तुझ में विजय मैं पाऊंगा, तुझ में विजय मैं पाऊंगा। ये जंग है तेरा यीशुआ। Yeah.
There's mighty power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. I'm not backing down from any giants, 'cause I know how this story ends. Yes, I know how this story ends. तुझ में विजय मैं पाऊंगा, तुझ में विजय मैं पाऊंगा। ये जंग है तेरा यीशुआ। तुझ में विजय मैं पाऊंगा, तुझ में विजय मैं पाऊंगा। ये जंग है तेरा यीशुआ। तुझ में विजय मैं पाऊंगा, तुझ में विजय मैं पाऊंगा। ये जंग है तेरा यीशुआ। तुझ में विजय मैं पाऊंगा, तुझ में विजय मैं पाऊंगा। ये जंग है तेरा यीशुआ। वो Jesus, the victory belongs to you. Yeah. Oh, Jesus. Yeah. Oh. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. Yeah, you turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. Yeah, you turn it for good. Oh yeah. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. Yeah, you turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. Yeah, you turn it for good. Jesus, you take what the enemy meant for evil and you turn it for good. Yeah, you turn it for good. तुझ में विजय मैं पाऊंगा, तुझ में विजय मैं पाऊंगा। ये जंग है तेरा यीशुआ। तुझ में विजय मैं पाऊंगा, तुझ में विजय मैं पाऊंगा। ये जंग है तेरा यीशुआ। तुझ में विजय मैं पाऊंगा, तुझ में विजय मैं पाऊंगा। ये जंग है तेरा यीशुआ। तुझ में विजय मैं पाऊंगा, तुझ में विजय मैं पाऊंगा। ये जंग है तेरा यीशु। You take what the enemy, Jesus. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. Yeah, you turn it for good. You're turning it around. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. Yeah, you turn it for good. Jesus, you take what the enemy meant for evil and you turn it for good. Yeah, you turn it for good. Oh, we thank you, Lord Jesus. We thank you, Lord Jesus. Let's sing once again. क्यों ना हम लोग एक और बार गाएं। तुझ में विजय मैं पाऊंगा, तुझ में विजय मैं पाऊंगा। ये जंग है तेरा यीशुआ। तुझ में विजय मैं पाऊंगा, तुझ में विजय मैं पाऊंगा। ये जंग है तेरा यीशुआ। तुझ में विजय मैं पाऊंगा,
तुझ में विजय मैं पाऊंगा, ये जंग है तेरा यीशुआ। Just one more time. और एक तुझ बार में विजय मैं पाऊंगा, तुझ में विजय मैं पाऊंगा, ये जंग है तेरा यीशुआ। Church, you are victorious in Him. कलीसिया आप उसमें विजयी हो। 2020 years ago, Jesus Christ gave His life on the cross for you and me, and He rose up again from the dead, and you were victorious, and I was victorious in Him. 2020 साल पहले यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए अपने जान को दिया ताकि आप और मैं जो है उसमें एक विजयी जीवन पाए। But before He did that, He did something else as well. और वो करने के पहले उन्होंने कुछ और भी किया। He did something in which we remember Him, we remember His death, and we remember His resurrection. और उन्होंने कुछ ऐसे किया जहाँ पे हम उनके पुनरुत्थान को और उनके मृत्यु को याद करते He हैं। took His disciples and He gave wine and bread and said that this represents His blood and His body, and He asked them to do it every time they meet. और उन्होंने अपने चेले को लेकर जाकर उन्हें रोटी और दाखरस दिया और कहा कि जब भी तुम ये करते हो तुम मुझे याद करते हो। So right now, church, we are going to partake together in the blood of Jesus and in the body of Jesus to remember His sacrifice. तो कलीसिया हम लोग एक होकर प्रभु को याद करेंगे, उसके लहू में और उसके शरीर में हम भाग लेंगे। And we are going to remember His sacrifice and His resurrection. और हम लोग याद करेंगे उसके त्याग को और उसके पुनरुत्थान को। So right now, let us read from 1 Corinthians chapter 11, verse 24. तो पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय और 24वां वचन में से हम पढ़ेंगे। And he gave thanks to God for it. और उसने प्रभु को उसके लिए धन्यवाद किया। Then he broke it in pieces and said, और उसने उसे टुकड़ों में तोड़कर कहा, "This is my body which is given for you. और ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया गया है, Do this in remembrance of me." और इसे मुझे याद करते हुए करना। In the same way, he took up a cup of wine after supper, और उसी के बाद उसने एक पात्र उठाया जिसमें दाखरस था, saying, "This is the cup of new covenant between God and His people, और उसने कहा कि प्रभु और उसके लोगों के बीच में एक नया वाचा है, an agreement confirmed with blood. और ये एक ऐसा वाचा है जो लहू से तय किया गया है। Do this in remembrance of me as often as you drink it." और जब भी तुम इसे पियोगे और खाओगे मुझे याद करना। Listen to this, church. और ध्यान से सुनना For कलीसिया, every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes again. और हर बार जब भी तुम इस पात्र से पियोगे और जब भी इस रोटी को खाओगे तुम यीशु मसीह का जो मृत्यु है और पुनरुत्थान है उसे घोषित So करते। right now, by partaking in this holy communion, you and I, we are announcing His death and His resurrection until He comes. तो जब भी हम एक साथ इसमें भाग लेते हैं वो आने तक हम उसके मृत्यु और पुनरुत्थान को घोषणा करते हैं। So church, remember Him right now. Worship Him. तो कलीसिया उसे याद कीजिए, उसकी आराधना कीजिए Remember His sacrifice. Remember His resurrection. और उसके त्याग को जानिए और उसके पुनरुत्थान को जानिए। So let us partake together right now. और क्यों ना हम लोग साथ में भाग लें। Why don't you close your eyes and we'll pray together. क्यों ना अपने आंखों को आप बंद करें और हम लोग साथ में प्रार्थना करेंगे। Jesus, we thank you for this time. यीशु उस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं Thank you, Jesus, that you gave your life on the cross for you and me. और धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे लिए आपके जीवन को क्रूस पर त्याग Thank you, कर दिया। Jesus, that you rose up from the dead again. और धन्यवाद प्रभु आपके पुनरुत्थान के लिए। Thank you, Jesus, that you are blessing all of us more and more. और धन्यवाद प्रभु कि आप हमें और आशीष देते जा रहे हैं। Thank you, Jesus, for reminding every time that you are there for us. और धन्यवाद प्रभु याद दिलाने के लिए कि आप हमारे लिए हो। Right now, we thank you for your presence amidst of us, Jesus. और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे बीच आपकी उपस्थिति है And we give you all the glory and honor, Father. और सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं And प्रभु। we pray this prayer in the mightiest name of Lord Jesus Christ. और यीशु के सामर्थी नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन, Amen. आमीन। All right, church, let's get into the sermon directly. और कल से हम लोग सीधे प्रचार की ओर बढ़ेंगे। I'd like to thank Jesron and Johnny.
और मैं जसरॉन और जॉनी को धन्यवाद कहना And चाहूँगा I'll let them go right now. और मैं उनको जाने की अनुमति दूंगा। Thank you, guys. धन्यवाद आप दोनों को। All right, I'll just wait for them to move. और मैं रुकूंगा कि ये लोग चले जाएं। Awesome. बहुत अच्छा। All right, tonight I want to talk about battle of fear. और आज रात में जो डर का जंग है उसके बारे में बताने वाला हूँ। I want to talk about this battle of fear that goes on in most of the people's lives. और मैं उस बारे में बात करूंगा बहुत से लोगों के जीवन में जो डर की जंग चल रही होती है। Especially in this time, people are going through a lot of fear, and they have this battle in their life about their health, their finances. और इस समय में जो है लोग बहुत से डर से गुजर रहे हैं, उनके अर्थव्यवस्था के बारे में या फिर उनके सेहत के बारे में। And I'm going to answer this one question for you. और मैं आपके लिए एक सवाल का जवाब देने Very वाला हूँ। simple. बहुत आसान। How to battle fear? हम डर से कैसे लड़ेंगे? How to battle your fear? आपके डर से आप कैसे लड़ सकते And the हो? first and foremost thing that comes to my mind when I talk about fear, और सबसे पहली बात डर के बारे में बोलते समय जो मेरे दिमाग में आती है, it comes to my mind that thoughts are the first thing that the fear attacks, you know. और ये है कि हमारा सोच जो है वो पहला स्थान है जहाँ पे डर हमला करता है। And in difficult times, we must consider what we are filling our minds with. और मुश्किल समय में आपको ये तय रखना चाहिए कि हमारे दिमाग में क्या जा रहा है। Yes, it is important to be informed. It is important to be ready and prepared. हाँ, ये सच बात है कि हमें जानकारी रखना चाहिए और हमें तैयार रहना चाहिए। But we cannot overload our minds, our thoughts with a lot of negativity, you know. लेकिन हमारे दिमाग और सोच को जो है हम बहुत से नकारात्मक बातों से नहीं भर And सकते। this negativity, it fills your mind with fear. और ये जो नकारात्मक बातें वो आपके दिमाग को डर से भर देती है। Let me tell you something. मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। God is honored when we play our part. और प्रभु जो है वो आदर पूर्वक होता है जब भी हम हमारा हिस्सा जो है करते हैं। But we must allow Him to do the rest. लेकिन हमें ये अनुमति देना होगा कि वो बचा हुआ काम हमारे लिए करे। One more secret. और एक रहस्य, Nothing surprises Him. और कोई भी चीज उसे अचंभित नहीं करती है। This season, this situation that you're going through, it does not surprise Him. और ये जो मौसम है, ये जो चीजें जो हो रही है, ये कुछ भी उसे अचंभित नहीं करती है। Because He's all knowing. क्योंकि उसे सब कुछ पता है। He is the beginning and He is the end. क्योंकि वही शुरुआत है और वही अंत है। The Bible says, right, He is the Alpha and He is the Omega. क्योंकि वचन कहता है वो अल्फा और ओमेगा है। Let me tell you, when things go beyond our minds and when we feel down, we lose control. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब ये चीजें हमारे पकड़ के बाहर हो जाती है, हम बहुत नीचा महसूस करने लगते हैं और हमारे दिमाग में सब नकारात्मक बातें आती हैं। And often when we lose control, we let our minds be filled with fear, and we go crazy, and these what if thoughts come into our mind. और जब भी हम काबू खो बैठते हैं, हम लोग जो है डर के पकड़ में आ जाते हैं और हम लोग सोचते हैं क्या अगर ऐसे हुआ तो। And before you and I know, our actions become rational no long. और जैसे आप और मैं जानने लगते हैं, उसके पहले ही हमारी जो युक्ति होती है वो कार्य करना बंद कर देती है। And we are no longer rational actually. और हम लोग युक्तिपूर्वक काम करना बंद कर देते हैं। But there's good news. लेकिन एक सुसमाचार है। In the Bible, we have a guide. और बाइबल में हमारे लिए एक मार्गदर्शक है। This guide helps us to know how to own our thoughts. और ये मार्गदर्शक हमें बताता है कि हम कैसे अपने सोच को अपना सकते हैं। And this is what my first point is. और ये मेरा पहला मुद्दा है। How to battle fear. कैसे आप डर से लड़ सकते हो? Test your thoughts. अपने सोच को परखिए। Philippians chapter 4 verse 8. फिलिपियों का 4 अध्याय 8वां वचन कहता It's है। a great test as to whether we should think the right things. और ये बहुत एक उम्दा परिचय है सोचने के लिए कि आप सही चीजें सोच रहे हो कि नहीं। It tells us what we should be thinking about. और ये हमें बताता है कि हमें क्या सोचना होगा। The verse tells us to think about things that are true, noble, right, and pure. और ये वचन हमें बताता है उन चीजों के बारे में सोचने जो सच्चे हैं, जो उम्दे हैं और सबसे उचित है। It also helps us to know, tells us about things which are pure, lovely, admirable, excellent, and worthy of praise. और उन चीज़ों के बारे में भी बात करता है जो बहुत खूबसूरत है और काबिल तारीफ है और बहुत उम्दा है और बहुत पाक है। Now let us consider these words that I listed below. और हम नीचे देखेंगे इन सारे शब्दों के बारे में जो मैंने आपको बताया है। The first word that I said, और पहला जो शब्द है जो मैंने कहा है, things that are true. चीजें जो सत्य है। True. सत्य। One of the most important things to consider about our thoughts is
are they true? और सबसे पहली बात, जब आपके सोच को आप परखोगे तो सोचिए क्या ये सच है. We need to focus on what is the truth. हमें ये देखना होगा कि सच्चाई क्या है, We need to focus on what is the reality. और हमें ये देखना होगा कि असलियत क्या है. Second word, दूसरा शब्द, we need to focus on what is noble. हमें देखना होगा कि क्या सबसे उचित है. Now, because we are children of God, we are in the highest of ranks, you know. क्योंकि हम प्रभु के बच्चे हैं, हम सबसे उचित स्थान में हैं. Our thoughts should be royal and our thoughts should be like highest. और हमारा सोच जो है सबसे ऊंचा होना चाहिए और उम्दा होना चाहिए. Let us not think about lowly things. Let us not think about small things. और हमें छोटी चीजों के बारे में या फिर छोटे चीजों के बारे में सोचते नहीं रहना Let चाहिए. our thoughts be noble. और हमारा सोच उचित रहना The चाहिए. third word that I listed, और तीसरा शब्द जो मैंने रखा है, things that are right. चीजें जो सही है. Now, thinking the right thought means allowing accuracy and allowing the right thing to guide us. और सही चीजें सोचने का मतलब ये है कि आप सही चीजें जो सच है, जो बारीकी है, उसे सोचें. You and I in Christ, we are called to be living the right living actually. और मसीह में होने के नाते आपको और मुझे बुलाया गया है कि हम एक सही जीवन जिए. You and I are called to have the right thinking. और आपको और मुझे इसलिए बुलाया गया है कि हम सही सोचें. You and I are called to think by the word of God. और आपको और हमें इसीलिए बुलाया गया है कि हम प्रभु के वचन के द्वारा सोचें. And what is right? और सही क्या है? The word of God is right. प्रभु का वचन सही है. Now the fourth word. और चौथा शब्द, The fourth word was pure. और चौथा शब्द है सबसे साफ या पाक. Now our thoughts needs to be pure. और हमारे जो सोच है वो बहुत साफ होने Now to चाहिए. be pure in heart and thought is not as difficult as we think. और अपने दिल और दिमाग में साफ सोचना उतना मुश्किल नहीं है जितना हम समझते हैं. It is simply choosing the right thought and choosing the good thought. और ये बहुत आसान है, आपको सही चीजें और उचित सोच रखना होगा. It is only to be honest. और ये ईमानदारी पर रखना होता है. Now the fifth word, और पांचवा शब्द it is lovely. जो है प्यारा. Now to think lovely thoughts means to see beauty in life. और प्यारा सोच का मतलब ये होता है कि आप जीवन के खूबसूरती को देखो. So when we see beauty in life and we allow those thoughts to come into our life, there's positivity that comes into our lives. और जब भी हम जीवन की खूबसूरती को अपनाते हैं, सकारात्मक चीजें हमारे पास आने लगती है. Let's always look around for good things. और हमें हमेशा अच्छी चीजों के लिए देखना है. Like you can look at the nature and say how beautiful it is, how God made it so beautiful. और आप कुदरत की ओर देखकर बोल सकते हो कि कितना खूबसूरत है, प्रभु ने इसे कितना खूबसूरत बनाया है. You can say how lovely our God is. और आप कह सकते हो कि हमारा परमेश्वर कितना प्यारा है. All right, what's the next word? और अगला शब्द क्या है? Admirable. और ये काबिल तारीफ है. Now to be admired is something most people want, right? और बहुत सारे लोगों को जो है तारीफ चाहिए होता है. But do we want admirable thoughts? क्या हमें तारीफ वाले सोचना चाहिए? Do we want thoughts that are distinguished and allow us to live such a way that is commendable from people, you know? और क्या हमारे ख्याल ऐसे जो हमें ऐसे सोचने पे मजबूर कर देता है, जो हमें लोग से दूर कर दे? So you have to think once again, do you have admirable thoughts? तो आपको सोचना होगा, क्या आप काबिल तारीफ सोचते हो? Seventh word. और सातवां शब्द, So you have to think things about things which are excellent. तो आपको वो सोचना होगा जो सबसे उम्दा है. You have to think things which are excellent. जो सबसे उम्दा है. The best of the best is what is excellent actually. और सबसे जो अच्छा है वही सबसे उम्दा है. The best of the best is excellent. और अच्छाइयों में भी जो अच्छा है वो उम्दा है. So the best is not excellent. और सिर्फ अच्छाई उम्दा नहीं है. From the best is excellent. और अच्छाई में भी सबसे अच्छाई पूर्वक उम्दा होता है. I hope you got that. और मुझे यकीन है कि आपको Now, समझा when होगा. our thoughts are excellent, they are superb. और जब भी हमारे सोच उम्दे होते हैं तो वो बहुत अच्छे होते हैं. They're exceptional. They are fabulous. They are out of the box. और ये जो होता है ये पूरे दुनिया के बाहर होते हैं, ये बहुत उम्दा होता है और ये बहुत अच्छा होता है. Even Bible talks about excellence. और वचन भी जो है उम्देपन के बारे में बात करता Excellent है. thoughts lead us to live excellent lives actually. और उम्दा सोच हमें उम्दा जीवन की ओर बढ़ाता है. Now what else do we have to think? और हमें क्या सोचना है? We have to think of things which are worthy of praise.
और हमें उन चीजों के बारे में सोचना होगा जो स्तुति के पात्र हैं। Now you'll ask me, what thoughts are worthy of praise? आप सोचोगे कौन से सोच है जो स्तुति के पात्र हैं? Thoughts about God are worthy of praise. प्रभु का सोच जो है वो स्तुति के पात्र है, His plans, His ways, His creations are worthy of praise. और उसके सृष्टिकरण, उसके रास्ते और उसके योजनाएं स्तुति के पात्र है। He is worthy of praise. वो स्तुति के पात्र When you है। sit and think about God, He is worthy of praise. That's the one thing that if you start thinking, you'll be like, oh, come on, how great He is, and you'll start praising Him. और यही वो एक चीज है, अगर आप सोचने बैठोगे पता चलेगा कि प्रभु कितना उचित है, कितना उम्दा है, तो ये स्तुतियों के पात्र है। And I know, Priya, it's safe to say when our thoughts are about Him, it's a very good thing. और मुझे यकीन है विंस्टन, मैं बता सकता हूँ कि मैं बता सकती हूँ कि जब भी हम उसके बारे में सोचते हैं तो हमारा सोच सबसे बढ़कर और परे होता है। Now, so what happens when we test our thoughts? और क्या होता है जब भी हम हमारे सोच को परखते हैं? Our circumstances change. हमारे हालात बदल जाते हैं। And when we start thinking with these words, things about these words, then our faith changes and faith enters into our life. और जब भी हम इन शब्दों के बारे में सोचने लगते हैं, विश्वास जो है हमारे जीवन में दाखिल होता है। I know that we were not created to know the future. और मुझे पता है कि हमें भविष्य जानने के लिए बनाया नहीं गया That's था। God's job. ये प्रभु का कार्य है, He sees and He knows the future. और वो देखता है और वो जानता है हमारे भविष्य के बारे में। Just as I said, He is all-knowing God. और जैसे मैंने कहा, वो सब जानने वाला परमेश्वर He है, is all-powerful God. और वो सब सर्वशक्तिमान And He परमेश्वर is है, everywhere all the time. और वो सब जगह पे हर जगह पे हर वक्त है। And guess what? और जानिए क्या, He sees you. वो आपको देखता है, He is with you. वो आपके साथ है, He is covering you. और वो आपको ढका हुआ है। Even when you can't sense it, I shall say you should trust Him that He is around you. और जब भी आप उसको महसूस नहीं कर पाते हो, आपको भरोसा रखना होगा कि वो आपके इर्द गिर्द है, Trust that He is standing by you. और यकीन रखिए कि वो आपके साथ खड़ा है। Can we adjust our thoughts 100%? क्या हमारे सोच को हम 100% बदल सकते हैं? Probably not. शायद ही नहीं। But in the world of thoughts, we can do some improvement by bringing these words and these thoughts in our lives. लेकिन ख्यालों के दुनिया में हम इन शब्दों को और इन सोच को लाकर कुछ तो बदलाव कर सकते हैं। So how can we win this battle? तो हम इस लड़ाई को कैसे जीत सकते हैं? First, start by testing your thoughts. पहले अपने सोच को परखिए, Know that your thoughts are from God. और ये समझिए कि आपका जो सोच है प्रभु के पास से होना चाहिए। Bring thoughts that are true, thoughts that are noble, thoughts that are right, और ऐसे सोच को लाइए जो सच है, जो उम्दा है, जो सही है, thoughts that are pure, thoughts that are lovely, admirable, excellent, and worthy of praise. और ऐसा सोच जो साफ है, जो प्यारा है, जो काबिल तारीफ है, जो उम्दा है और जो स्तुति के पात्र है। All right, my second point on how to battle fear. और मेरा दूसरा मुद्दा कि आप डर से कैसे लड़े। Are you ready? क्या आप तैयार हो? Second point is दूसरा मुद्दा है look up to God. प्रभु की ओर देखिए, Look up to God. प्रभु की ओर Now I देखिए। know that it's a challenge when we find ourselves in a place where we are bombarded with, negativity, with fear. It's hard to look up to God. और मुझे यकीन है कि जब भी हम एक ऐसे हालात में हैं जहाँ पे नकारात्मक चीजें हो रही है, डर की बातें हो रही है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है प्रभु की ओर देखना। We want to overcome it, but most of the times we are looking to something else, looking at someone else instead of looking up to God. और हमें इस हालात से बाहर निकलना ही है, लेकिन हम पूरे समय किसी ना किसी को देखते रहते, किसी की मदद के लिए हम रुके पड़े रहते Or हैं। maybe often this is what we do. We look at the things, we look at the issues that are happening in our lives. या फिर ये होता है कि हम हालातों को देखते हैं, हम देखते हैं कि जीवन में क्या हो रहा है, क्या समस्या है, We need to reverse that. और हमें इसे पलटना होगा। Let's, put our eyes on what is good. और हमारे आंखों में हम सिर्फ वही देखेंगे जो सही है, Let's put our eyes on the Almighty. और हमारे आंखों हम परमेश्वर पे रखेंगे, Let's put our eyes on our powerful God. और हमारे सामर्थ्य प्रभु पर अपने नजर को टिकाए And रखेंगे। maybe simply glance at our problems and say, problem? I don't care. I have a powerful God. और बस अपने हालात को देखना, समस्या को देखना और बोलना, समस्या समय नहीं है, मेरे पास प्रभु है। Life works better that way. और आपका जीवन ऐसे और बेहतर काम करता Now है। Hebrews 12 is a great reminder for us, और इब्रानियों का 12वां अध्याय जो है एक अच्छा याद दिलाता है हमें। And as we focus our lives on, trials and struggles in front of us, और जैसे ही हमारे जीवन को जो है मुश्किलों पर और हालातों पर हम हावी होने देते हैं उसे we हमारे need पर, to change it. We need to focus it on God.
और हमें इसे पलटकर प्रभु पर केंद्रित रहना We होगा need to know that God is all over the place. और हमें ये जानना होगा कि प्रभु हर जगह मौजूद है When there is a problem that enters your life, God is all over it. He knows what to do. और जब भी कोई समस्या आपके जीवन में आती है प्रभु उसे ढक चुका होता है प्रभु को पता है कि उसे क्या करना है Hebrews chapter 12 verse 2 says, it tells us to keep our eyes on Jesus. और इब्रानियों का 12 दूसरा वचन कहता है कि हमारे आंखों को हमें यीशु पर टिकाए रहना चाहिए Why? क्यों Because He is our faith. क्योंकि वो हमारा विश्वास है He is the one who perfects our faith. और वो ही है जो हमारे विश्वास को और आगे बढ़ाता है So to find out where your thoughts are directed, और ये जानने के लिए कि हमारा विचार कहाँ पर है you and I need to ask these questions. और आपको और मुझे ये सवाल पूछना होगा Is my focus more on God क्या मेरा केंद्र प्रभु पर है or on my daily circumstances? या फिर मेरा ध्यान मेरे रोजमर्रा के जीवन पर हालात पर है Do I tend to worry when I have struggles? क्या मैं हालातों के समय में जूझता हूँ Or instead, am I trusting God? या फिर मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूँ Am I entertaining my fear by imagining what if situations in my life? क्या मैं अपने डर को आगे बढ़ा रहा हूँ ये सोचकर कि क्या हो जाएगा मेरे जीवन में Or I don't think about it and I have faith in God and I trust Him more? क्या मैं इसके बारे में सोचे बिना प्रभु पर ज्यादा विश्वास रखकर उस पर भरोसा रखता I हूँ know because we are humans and we are in this flesh, we tend to most of the time struggle. और मुझे पता है इंसान होने के नाते हम इस शरीर में ये सोचते हैं कि हम हालात को बढ़ा कर देते हैं You know why? आपको पता है क्यों Because it's easier. क्योंकि ये बहुत आसान है It's easier to turn to your flesh. बहुत आसान है आपको आपके शरीर की ओर मुड़ना But church, let me tell you, look up towards Jesus. लेकिन कलीसिया में ये बताना चाहता हूँ कि आप यीशु के तरफ देखिए When we do that, our minds are less likely to, get into fear. और जब भी हम ऐसे करते हैं हमारे दिमाग में डर का ताबा जो है कम हो जाता Our है minds are less likely to fix on problems or issues. और हमारा दिमाग जो है समस्याओं पर हालातों पर कम ध्यान लगाता है We won't grow weary, we won't fear, we won't worry when our eyes are fixed on God. और हम चिंता नहीं करेंगे हम डरेंगे नहीं और हम थकेंगे नहीं जब भी हमारी नजरें प्रभु की So ओर let होगी us not give up. तो हम लोग हार नहीं मानेंगे And so what's the second point? तो दूसरा मुद्दा क्या है Look up to God. प्रभु की ओर देखो Let me remind you the first point actually. और मैं आपको पहला मुद्दा याद दिलाऊंगा Test your thoughts. और अपने सोच को परखिए Second point, दूसरा मुद्दा look up to God. और प्रभु की ओर देखिए Third point, how to battle fear. और तीसरा मुद्दा कैसे आप डर से लड़े This is what I love. This is the best. और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये सबसे उम्दा है It's very simple, ये बहुत आसान है yet it is the most important. लेकिन ये सबसे जरूरी है Declare your victory. अपने विजय को घोषित करना Declare your victory. अपने विजय को घोषित करना Before your trouble comes in, you have to declare your victory. आपके समस्या के आने से पहले ही आपको आपके विजय को घोषणा करना होगा It's wise to be prepared, right? और ये बहुत ज्ञानी है कि आप तैयार रहे It's wise to prepare for a course of action when things are coming towards us. और जब भी कोई क्रिया हमारे तरफ बढ़ती है तो उसके लिए तैयार रहना बहुत ज्ञानी माना We जाता can है trust God even when we don't see what's the next step. और जब भी हमें पता भी नहीं होता है कि अगले कदम में क्या है ऐसे समय में प्रभु पर भरोसा रखना उचित है The best way to come against fear is to speak the word of God. और सबसे उम्दा तरीका डर के खिलाफ जाना है तो प्रभु के वचन को So you बोलिए declare your victory by speaking the word of God over your life. तो अपने जीवन पर प्रभु के वचन को बोलकर विजय को घोषित कीजिए So right now I'm going to simply declare word of God over your life. तो इस समय में आसानी से प्रभु के वचन को आपके जीवन पर घोषणा I'm करूंगा not going to explain anymore. और मैं इसके आगे कुछ बताऊंगा नहीं आपको I'm just going to simply show you how to declare the word of God over your life. और मैं आसानी से आपको बताऊंगा कि कैसे प्रभु के वचन को जीवन पर घोषणा करें This is how you do it. और ये ऐसे करते हो आप Romans chapter 12 verse 2. और रोमियो का 12वां अध्याय दूसरा वचन कहता है Don't copy the behavior and customs of this world, इस दुनिया के रीति रिवाज और रवैयों का पीछा मत करना but let God transform you into a new person by changing the way you think. लेकिन प्रभु को अनुमति देना कि वो आपका सोच और व्यक्तिगत बदल दे Then you will learn and know God's will for you, फिर आप प्रभु का उद्देश्य जानोगे आपके लिए which is good and pleasing and perfect. जो अच्छा है सबसे उम्दा है और सबसे पाक है So once you read this verse, then you pray.
और जैसे ही आप ये वचन पढ़ते हो आप प्रार्थना Then कीजिए you say to God, God, help me not to copy the behavior of this world. और आप प्रभु से कहना, प्रभु मेरी मदद कीजिए कि मैं इस दुनिया के पीछे ना जाऊं, God, transform me by your Holy Spirit. और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे बदल देना, God, renew my mind. और प्रभु मेरे सोच को बदलना, Then I'll be able to know what is good for me. और फिर मैं जानूंगा कि मेरे लिए अच्छा क्या है, Then I'll be able to know your good, pleasing and perfect will on my life. फिर मैं जानूंगा कि आपका अच्छा और उम्दा उद्देश्य क्या है मेरे जीवन की। Philippians chapter 4 verse 8. और फिलिपियों का 4 अध्याय 8वां वचन This is कहता what है, it says. वचन ये कहता है, Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, and whatever is commendable, if there is any more excellence, and if there is any more praiseworthy, dwell on those things. और वचन ये कहता है, आखिर में मेरे भाई और बहनों, जो भी सच है, जो भी आदर पूर्वक है, और जो भी स्थिर है, और जो भी पाक है, जो भी प्यारा है, और जो भी काबिल तारीफ है, अगर ऐसा कुछ है तो वो सबसे उम्दा है और वो स्तुतियों के लायक है, और तुम उसी में रहना। So you read this verse and then you pray to God again. और आप इस वचन को पढ़ना और प्रभु से प्रार्थना करना, And you pray that, God, whatever is honorable, I want that in my life. और अब बोलना, प्रभु जो भी आदर पूर्वक है मुझे अपने जीवन में चाहिए, God, whatever is just, whatever is true, I want that in my life. और प्रभु जो भी सच है, जो भी सीधा है वो मेरे जीवन में God, चाहिए, whatever is excellent, whatever is commendable, I want that in my life. और प्रभु जो भी उम्दा है, जो सबसे बढ़िया है, वो मुझे अपने जीवन में Let's चाहिए। declare one more word of God. और हम लोग और एक वचन बोलेंगे प्रभु 2 का, Corinthians chapter 10 verse 5. दूसरा कुरिन्थियों का 10वां अध्याय 5वां वचन। We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. और हम उन सारे बातों को, सारे झगड़े फसादों को, सोचों को जो है हम लोग उखाड़ कर फेंकते हैं जो प्रभु के ज्ञान के खिलाफ है, And we take captive of every thought to make it obedient to Christ. और हम उन सारे सोच पे अपना काबू दे देते हैं जो हमें मसीह को आज्ञा पालन करना Come on, सिखाती come है। on. Then we have to pray. और चलिए फिर हमें प्रार्थना करना है, God, with your power, प्रभु आपके सामर्थ के साथ, I demolish anything that sets itself against me. और प्रभु जो भी मुझे आपके खिलाफ लेके जाती है सबको मैं नाश करता I हूँ, take every thought and captive and make it obedient to Christ. और मैं हर एक सोच को काबू करता हूँ ताकि वो मुझे आपका आज्ञा पालन करना So by the सिखाए। power of God, you demolish everything that sets against you. और प्रभु के सामर्थ के साथ वो सब कुछ नाश कर देना जो आपको प्रभु के खिलाफ लेके जाता Come on, है। I'm going to declare some more words over your life. और मैं कुछ और वचन आपके जीवन पर घोषित करने Colossians वाला। chapter 3 verse 2. और कुलुस्सियों का 3 अध्याय 2 वचन कहता है, Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. और अपने सोच को उन चीजों पर रखना जो ऊपर है, ना कि वो चीजों पर जो धरती पर है। Then you say, God, I will set my minds on things above, not on earthly things. और फिर आप प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे सोच को मैं ऊपर रखूंगा ना कि इस दुनिया की चीजों पर। 2 Timothy verse 1, chapter 1 verse 7. और 2 तिमुथियों का 1 अध्याय 7वां वचन कहता है, This is what it says. वचन ये कहता है, For God did not give us a spirit of timidity or cowardice or fear, और प्रभु ने जो है हमें जो है एक शांत रहने की आत्मा या फिर डर की आत्मा नहीं दिया या कायर की आत्मा नहीं but He दिया, has given us a spirit of power and of love and of sound judgment. लेकिन उन्होंने हमें एक ऐसी आत्मा दी है जो सामर्थ्य से है, प्यार से है और एक अच्छे जजमेंट से या फिर एक अच्छे जजमेंट से। And then you say, God, और फिर आप कहिए, प्रभु you did not give me a spirit of timidity. आपने मुझे एक डर की आत्मा या फिर शांत रहने की आत्मा नहीं दी, You did not give me a coward spirit, आपने मुझे मायूस या कायर नहीं बनाया है, but you gave me power. लेकिन आपने मुझे सामर्थ्य दिया You है, gave me a spirit of love. लेकिन आपने मुझे प्यार की आत्मा दी You है, gave me a spirit of sound judgment. और आपने मुझे एक अच्छे न्याय की आत्मा दी है। This is how you declare the word of God over your life. और ऐसे ही आप प्रभु के वचन को अपने जीवन पर घोषित करते हैं, This is how you declare victory over your life. और ऐसे ही आप विजय को घोषित करते हैं। One final verse. और एक आखिरी वचन, 1 Peter chapter 5 verse 7. 1 पत्रस 5वां अध्याय 7वां वचन, Cast all your anxiety on him because he cares for you. और अपने सारे बोझ को उस पर चढ़ा देना क्योंकि वो आपका ख्याल रखता So है। when you have fear coming towards you, और जब भी डर आपकी ओर आता है, when you have struggles coming towards you, और जब भी जो समस्याएं आपकी ओर आती है, you read this word.
आप इस वचन को and पढ़िए you say, I cast all my anxiety upon you, God. और आप कहिए प्रभु मैं अपने सारे बोझ आप पर देता हूँ. And you say, because God, you care, that's why I cast all my anxiety on you. और कहिए कि प्रभु क्योंकि आप ख्याल रखते हो मैं अपने सारे घबराहट को आपके पास देता हूँ. Church, don't make this prayer for just once. और कलीसिया ये प्रार्थना सिर्फ एक बार ही मत करना Do this throughout your week, every day. और हफ्ते के दौरान हर रोज ये प्रार्थना करना. Now, fear doesn't lose its grip like in one day, you know. और डर जो है एक ही बार में अपने पकड़ को नहीं छोड़ता है. This is a battle that you fight every day. और ये एक लड़ाई है जो आप रोज लड़ते हो. Even if you don't feel like praying, और जब भी आप प्रार्थना करने के महसूस नहीं करते even हो if you don't feel like declaring these words, और जब भी आपको घोषणा करने का मन नहीं होता है do it anyway. करिए कैसे भी करके. You may not feel anything when you pray one time. और शायद एक बार प्रार्थना करने पे आपको कुछ महसूस नहीं होगा. Let me tell you, that's okay. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई बात नहीं. Pray again, वापस प्रार्थना and कीजिए. again, वापस प्रार्थना कीजिए. and again. और वापस प्रार्थना We कीजिए. don't pray only to feel good. और हम सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए प्रार्थना नहीं करते. We don't pray only because we feel like praying. और हम सिर्फ इसलिए नहीं प्रार्थना करते कि हमें प्रार्थना करने को महसूस होता है. We pray that something happens. और हम इसलिए प्रार्थना करते कि कुछ हो. We pray that things will change. और हम प्रार्थना करते कि चीजें बदले. So you have to do it every day. सो आपको ये रोज रोज करना होगा. So how do you battle the fear? तो आप लड़ाई कैसे लड़ोगे डर के First खिलाफ? point, test your thoughts. पहले अपने सोच को परखिए. Second point, look up to God. दूसरा प्रभु की ओर देखिए. Third point, declare your victory. और तीसरा अपने विजय को घोषित Come कीजिए. on, let me pray for you. क्यों ना मैं आपके लिए प्रार्थना करूं. Father in heaven, we thank you for this wonderful time. और स्वर्गीय पिता इस अच्छे समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं. Thank you, Jesus, that you are standing by me every time, everywhere. और धन्यवाद प्रभु की हर समय हर जगह आप मेरे साथ खड़े हो. When I'm struggling, when I'm in fear, you are there with me. और प्रभु जब मैं जूझ रहा होता हूँ जब मैं डर में होता हूँ आप मेरे साथ हो. You are there to help me with my thoughts. और आप मेरे साथ हो मेरे सोच के साथ मदद करने You are के लिए. there when I'm declaring my victory. और आप मेरे साथ हो जब मैं विजय की घोषणा करता Because हूँ. my victory is in you, Jesus. क्योंकि मेरा विजय आप में है I यीशु. thank you, Jesus, that you control my life. और धन्यवाद यीशु कि आप मेरे जीवन को चलाते हो. And I right now declare that everything that I have is yours, Jesus. और प्रभु इस समय मैं घोषणा करता हूँ जो कुछ भी मेरा है वो आपके नाम है I प्रभु. pray, Lord Father, that anyone who's watching this video, they declare that right now that everything they have, it belongs to Jesus. और प्रभु मैं घोषणा करता हूँ जो कोई इस वीडियो को देख रहा है जो कुछ भी उनका इस समय वो आपका हो चुका है प्रभु. I declare right now that any anxiety, any fear, get out in the name of Lord Jesus Christ. और मैं घोषणा करता हूँ कोई भी तरीके की घबराहट डर निकल जाए यीशु के नाम से. Any fight that they have towards their finances, towards their health, Lord Father, I pray, Lord Jesus Christ, that you be in their life and you change it around, Lord. और प्रभु सेहत में हो या फिर आर्थिक चीजों में हो आप उनके साथ रहना उनके सारे समस्याओं में. All the glory and honor be to you, Father. सारा आदर और महिमा सिर्फ आपका हो प्रभु. Amen. आमीन. Right now, I want to give an opportunity to anyone who doesn't know Jesus. इस समय मैं एक मौका देना चाहूंगा उन लोगों के लिए जो यीशु के बारे में नहीं जानते. If you're hearing about Jesus for the first time, अगर आप यीशु के बारे में पहली बार सुन रहे हो let me tell you, this is the best thing that is happening to you. मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आपके जीवन का सबसे सबसे अच्छा चीज है जो होने वाला And है. tonight, if you have decided that you are going to follow Jesus, that would be the best step you have taken in your life. अगर आज रात आपने फैसला किया है कि आप यीशु मसीह का पीछा करोगे तो ये सबसे अच्छा फैसला है जो आपने पूरे जीवन में लिया होगा. I did that in my life and it changed my life around. मैंने भी मेरे जीवन में ये फैसला किया था जो पूरी तरीके से मेरे जीवन को पलट And कर I'm रख sure दिया. it is going to change your life. और मुझे यकीन है कि ये आपके भी जीवन को बदल के रख So if you देगा. have decided to follow Jesus tonight, why don't you pray this prayer with me? अगर आपने फैसला किया है कि आज रात आप यीशु का पीछा करोगे क्यों ना इस प्रार्थना मेरे पीछे दोहराए इस प्रार्थना को. Jesus, we thank you that you gave your life on the cross for us. यीशु हम धन्यवाद करते हैं आपके जीवन के लिए जो आपने क्रूस पर त्यागा है. Thank you, Jesus, that you took away our sins. धन्यवाद यीशु हमारे पापों को लेने के लिए. Thank you, Jesus, that you rose up from the dead. और धन्यवाद यीशु जो आपने मृत्यु को हराया है. Thank you, Jesus, that you made us victorious. धन्यवाद प्रभु हमें विजयी बनाने के लिए. Thank you, Jesus, that you have changed our lives. धन्यवाद यीशु हमारे जीवन को बदलने के लिए. Tonight we choose to follow you. आज रात हम आपकी पीछा करने की फैसला करते हैं. Tonight we choose to leave everything behind. और आज रात हम फैसला करते हैं कि हम सब पीछे छोड़ चुके हैं. Tonight I decide that you are my Lord.
आज रात मैं फैसला करता हूँ कि आप मेरे प्रभु हो And I love you, Jesus. और मैं आपसे प्यार करता हूँ यीशु। And all the glory and honor be to you, Father. सारा आदर और महिमा सिर्फ आपका हो यीशु। Amen. आमीन। All right, if you have prayed this prayer, अगर आपने इस प्रार्थना को बोला है, you've done an awesome job. आपने बहुत उम्दा काम किया है And we'd love to know that. और हमें अच्छा लगेगा अगर आप हमें इस बारे में बताएं So तो। if you have prayed this prayer, why don't you click on the link in the comment section and let us know, and we'll help you know more about Jesus. अगर आपने इस प्रार्थना को पहली बार किया है तो क्यों ना आप कमेंट सेक्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करें और हमें बताएं, तो हम आपकी और जानकारी रखेंगे और संपर्क में रहेंगे। Thank you. धन्यवाद। That was an awesome word by Pastor Winston. और पास्टर विंस्टन के द्वारा ये बढ़िया वचन था And I personally was very much encouraged by the story. और निजी तौर से ये कहानी ने मुझे बहुत उत्तेजित किया। And thank you so much for joining us today. और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। I hope that you have enjoyed your time with us, और मुझे यकीन है कि हमारे साथ आपका समय अच्छा बीता listening to the word of God as well. और प्रभु के वचन को सुनते हुए। Do not forget, next week again on Sunday, we will see you in the evening at 6 p.m. और ये भूलना नहीं, अगले हफ्ते फिर से रविवार के शाम के 6 बजे हम लोग ऑनलाइन मिलेंगे आपके साथ। And do not forget that we also have Tuesday worship nights और ये भी मत भूलना कि मंगलवार के रात को हम लोग वर्शिप नाइट करेंगे at 8 p.m. 8 बजे। You can let us know if you would like to join in. You can just click on the link and let us know about the same. और आप हमें बता सकते हो कि अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ वर्शिप नाइट में तो लिंक पर क्लिक कीजिए और हमें बताइए। Thank you so much once again. Stay safe. Take care. और धन्यवाद एक और बार, आप सुरक्षित रहिए और ख्याल रखिए।